चुपै चुप न होवई जे लाए रहा लिवतार। ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੰਜ ਜਮਦੂਤ ਵਸਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਤੇ ਇਨਸਾਨ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਜਮਦੂਤਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮੌਨ ਧਾਰਨ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਚੁੱਪ ਬੈਠਣਾ ਪਏਗਾ। ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਮੈਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦਾ ਹਾਂ, ਮੇਰੀ ਜ਼ਬਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਬੋਲ ਨਾ ਨਿਕਲ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਚੁੱਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਾਂ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮੁਖ ਤੇ ਉਂਗਲ ਰੱਖ ਲਾਂ। ਜਦੋਂ ਜੈਨ ਮਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਸਾਧੂਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣਾ ਘਰੋਬਾਰ ਸਭ ਕੁਝ ਛੱਡ ਕੇ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਵਸ ਗਏ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਕਸ਼ਟ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਅੱਗ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਤਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਇੱਕ ਲੱਤ ਤੇ ਖੜਾ ਹੋ ਕੇ ਤਪ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਪੁੱਠਾ ਲਟਕ ਕੇ ਤਪ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕੰਦ ਮੂਲ ਆਹਾਰ ਖਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਰੱਬ ਖੁਸ਼ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮਿਲਾਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਕਸ਼ਟ ਦੇ ਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਉਸ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚਾਲੀਆ ਕੱਟਣਾ, 40 ਦਿਨ ਨੰਗੇ ਪੈਰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਮੰਨਤ ਮੰਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਹੁਣ ਨੰਗੇ ਪੈਰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ, ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਕੋਈ ਵੀ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਇਦਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਸ਼ਟ ਹੋਵੇ, ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਪੈਰ ਤੋਂ ਨੰਗਾ ਤੁਰਦਾ ਫਿਰੇ, ਭਾਵੇਂ ਆਪ ਜੋੜਾ ਪਾਉਣ, ਮਾਂ ਪਿਓ ਜਾਂ ਨਾ ਪਾਉਣ, ਪਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਪੈਰ ਹੀ ਜੋੜਾ ਜ਼ਰੂਰ ਪਵਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਉਹ ਪਿਤਾ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ ਕਦੇ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਬੱਚੇ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਕਸ਼ਟ ਦੇ ਕੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ। ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਕਸ਼ਟ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਸੋਚ ਇਹ ਰਿਹਾ ਕਿ ਰੱਬ ਇੰਨਾ ਕਸ਼ਟ ਕਾਰਨ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਹੋਏਗਾ। ਨਹੀਂ ਭਾਈ, ਇਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਮੁਖ ਤੇ ਉਂਗਲ ਧਰ ਲਈ, ਚੁੱਪ ਕਰ ਲਿਆ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿ ਮੈਂ ਚੁੱਪ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਮੌਨ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਤੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ, ਮੈਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਾਂ। ਨਹੀਂ ਭਾਈ, ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਕਸ਼ਟ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੱਬ ਕਦੇ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਹੁਣ ਚੁੱਪੈ ਚੁੱਪ ਨਾ ਹੋਵਈ ਜੇ ਲਾਏ ਰਹਾ ਲਿਵਤਾਰ। ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੁੱਪ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਵੀ ਹੈ ਜੀ, ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਹੈ। ਪਾਠ ਪੜਿਓ ਅਰ ਵੇਦ ਵਿਚਾਰਿਓ ਨਿਵਲ ਭੁਯੰਗਮ ਸਾਦੇ, ਪੰਚ ਜਨਾਸਿਓ ਸੰਗ ਨਾ ਛੁਟਕਿਓ ਅਧਿਕ ਅਹੰਗ ਬੁੱਧਵਾਦੇ। ਪਿਆਰੇ इन विद मिलन ना जाई मैं किए कर्म अनेका, हार परियो स्वामी के द्वारे दिजे बुद्ध विवेका। पावन पंक्ति देखो जी, पाठ पढ़ियो और वेद विचारियो निवल भुयंगम साधे। मैं पाठ भी पढ़ ले जी, धार्मिक पुस्तकां भी पढ़ लिया, वेद ग्रंथ कुरान सब कुछ विचार पढ़ लिया, पर मैनू हासिल कुछ नहीं होया। हासिल ते तां होएगा ना जेकर पढ़िया होया अपनी जिंदगी दे अंदर लेके आए। पढ़न दे नाल गल नहीं बननी पाई, जो तू पढ़िया है उसनू अपने अंदर लैके आना। पंच जनास्यो संग ना छुटकियो, ये जिहड़े पंज जमदूत बैठे ने, इन्हां तो छुटकारा तो की पाउणा सी? अधिक अहंग बुद्धवादे, होर अहंकार हो गया जी। मैं इन्ना पाठ करके आया है, तुसी हले तक सुते हो। देखते ही है जी, जो एक बंदा रूटीन दे विच रोज़ गुरुद्वारे मंदिर मस्जिद जावे ते घर जाके अहंकारी जा हो जाता है, तुसी सारे सुते हो, मैं पाठ पूजा करके भी आ गया। वो छुटकारा पाउणा सी काम क्रोध लोभ मोह अहंकार तो, पर होया कि अधिक अहंग बुद्धवादे, होर अहंकार आ गया जी इंसान। फिर हजूर कहते प्यारे हे इंसान इन विद मिलन ना जाए, इन्ना तरीके दे नाल तू रब नूं नहीं मिल सकता जेड़े तरीके तू अपना रहा है। सोच तू रहा कि रब खुश हो रहा है, पर हजूर कहते ने प्यारे इन विद मिलन ना जाई मैं किए कर्म अनेका, मैं बहुत कर्म कर लिए, हार परियो स्वामी के द्वारा दिजे बुद्ध विवेका।
हार होगी जदों मेरी, फिर मैं रब दे कोल गया, पातशाह जी मैनू विवेक दान दे। विवेक दरदे चंगी मत, चंगी बुद्धि, ताकि मैनू समझ आवे। उत्थे महाराज जी ने यह भी आख्या सी, मौन भयो। मौन का अर्थ है जी चुप हो जाना, इंसान चुप हो रहा। मौन भयो करपाती, रहियो नगन फिरियो बनमाही। इंसान नंगा होके जंगलों के विच घूमता है कि मैं रब नूं प्राप्त कर लांगा। मौन धारण किया है, बहुत जे कष्ट दिते जा रहे हैं। मौन भयो करपाती, रहियो बगन फिरियो बनमाही। जदों महाराज जी ने पूरी अष्टपदी के अंदर उन्होंने कर्म कांडा की गल की, ते जपजी साहिब जी की पावन पवित्र इस पंक्ति के अंदर भी धन गुरु नानक महाराज जी ने यही आख्या कि चुपे चुप ना हो। तू अपनी जबान नूं ते बंद कर सकता है, पर जिहड़ा तेरे मन के विचों अहंकार बार बार फुट के बाहर आ रहा है, उस अहंकार नूं भला तू किवें बंद कर सकता है। हुण जबान बंद करन दे नाल अंदर जिहड़ी अग बलदी है जी, वो थोड़ा ही शांत हो सकती है। जेकर तू मौन धरना है तो उस मन नूं शांत करा जिस मन दे विचों अंगारे बाहर आ रहे हैं। एक साखी है जी धन गुरु नानक महाराज जी के जीवन दे विच, जदों वो प्रचार दौरे ते ने भाई मरदाना जी नाल ने राह दे विच वेख्या कि एक साधु समाधि ला के बैठिया, मौन धारण किया। थोड़े जे 4-5 बंदे उहदे सामने ने, उन्होंने भी अखां मिचियां हुई हैं। हुण वो कह रहे कि मैनू 3 भवन की सोझी हो रही है, 3 लोकां की सोझी हो रही है। मैनू सारा विश्व, सारा संसार, पाताल लोक, आकाश लोक, ये सब कुछ दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने लोगों को गुमराह कर रहे हैं, क्योंकि तिजोरी भरनी सी, सामने लोटा रखे, उस लोटे दे विच पैसे आउंदे ने, फिर होर तप करन लग पैंदा है, होर मौन धारण करता है, बार बार अखां खोल के वेखदा है कि लोटा किन्ना भर गया पैसे दे नाल। दूर खलोते भाई मरदाना अते धन गुरु नानक महाराज जी ने इस सारे दृश्य को देखिया। आख्या महाराज जी ने भाई मरदाना जी कि मरदाना जी ये जिहड़ा सामने लोटा रखिया इसनूं किते छिपा दो जी हजूर। सतवचन कहंदे होया भाई मरदाना जी ने वो लोटा चक्किया ते दूर किते झाड़ी दे विच छुपा दिता। हुण जदों लोटे दे विच पैसे गिरन तो बंद हो गए, पहला तो आवाज़ आ रही सी, ना पैसे गिर रहे सी ते आवाज़ आ रही सी हाँ भाई पैसा आ रहा। हुण वावा चिर हो गई, अख खोल के वेख्या कि सामने लोटा ही नहीं उस साधु ने। बड़ा अहंकार दे विच आया, किहदी जरूरत हुई है मेरे नाल, ये दिशा एक किहदी हिम्मत है कि किसने मेरा लोटा चक्या। वो बोल सी ओहदे, गुस्सा आया। ते जदों धन गुरु नानक महाराज जी वाल निगाह गई, मुस्करा रहे ने पातशाह जी, ते आख्या कि 3 भवनां की सोझी तुहानूं हो रही है। उन्हां 3 भवनां दे विचों किते ना किते वो लोटा भी तुहाडा रखिया होएगा। तुसीं आप लभ लो जदों तुसीं कह रहे हो कि 3 भवन की सोझी हो रही है। साधु भी हैरान होया, पैर पकड़ ले धन गुरु नानक महाराज जी दे। नहीं पातशाह जी, मैं तो सिर्फ 2 वक्त की रोटी का गुजारा करने वास्ते ये सब कुछ कर रहा सी, मैनू कोई 3 भवनां की सोझी नहीं हो रही, मैं कोई मौन नहीं धारण किया। हुण जदों इस सारे दृश्य को देखते हैं, लगता है कि इंसान लोगों को गुमराह करने वास्ते अपना सिर्फ पेट भर रहा है, अपने पेट वास्ते लोगों को गुमराह कर रहे हैं। लोग आए सी रब दे नाल जुड़न करके, क्योंकि पंक्ति है जी किवें सचियारा हुई है। पातशाह जी असीं सचियार होना चाहते हैं, किवें होई? एक कूड़ की पंड जिहड़ी साडे नाल बची हुई है, इसनूं उतारना है। ताई बंदा मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे भगती करन सत्संग करना चाहता है, पर जेकर उही लोग उसनूं गुमाह करन लग जाण। हुण वो जिहड़े सामने चिल्ले बैठे सी, ताई आए सी कि साडे गुरु नूं, साडे साधु नूं 3 भवनां की सोझी हो रही है, रब का कोई अवतार है। पर जदों सच्चाई का पता लगता है, उन्हां साधुआं दे चेलियां ने भी फिर धन गुरु नानक महाराज जी के पैर पड़े। हुण ये जी चुप्पे चुप ना होवे जे लाए रहा लिवतार, असल दे विच तू अपने मुख ते उंगल रख के या समाधियां ला के तपस्या करके रब की प्राप्ति नहीं कर सकता जी। ये वो काम हो गया जिथे भाई गुरदास जी ने आख्या सी जी, गाए सुने अंखें मिचे पाइए ना परम पद। अखां मिचण नाल, सुनण दे नाल, गुण दे नाल परम पदवी नहीं पाई जाती। और पावन कविता जी पूछत है बैद,
पूछत पथिक तेह धारै न मार्ग पग प्रीतम के देश कैसे बातन से जाइए। हुण पुछिया कि भाई मैं अपने देश जाना है, अपनी मंजिल ते जाना है, अपने पिंड अपने शहर जाना है, मैनू रास्ता दस। रास्ता ते दस दिता, पता भी चल गया ये रास्ता है, पर इंसान खलोता उत्थे दा उत्थे ही है, अपना कदम नहीं पुट रहा, कोई कोशिश नहीं कर रहा कि मैं जावा किवें। रास्ता पता लग गया, पूछत पथिक तेह मार्ग न धारै पग प्रीतम के देश कैसे बातन सजाइए। भला गल्लां बातां दे नाल इंसान नूं मंजिल प्राप्त हुंदी है जी? घर दे विच बैठा रहे मैं मंजिल वल वध जावांगा, इदां हो सकदा नहीं। पूछत है वैद औखद, जदों उन्हां ने वैद की गल कीती कि ਇਹ डॉक्टर जदों मरीज नूं देखदा है, मरीज गया डॉक्टर दे कोल दवाई लैण वास्ते, डॉक्टर ने उस मर्ज नूं देखदियां होया दवाई दे दी, दवाई लेके घर भी आ गया तो दवाई खाती नहीं। भला आराम मिल सकता है? नहीं, आराम नहीं मिलेगा जदों तक दवाई खाएगा नहीं। यही गल है, गुरबाणी पढ़ी जा रही है, पाठ पढ़ी और वेद विचार हो, पर उसनों समझ नहीं रहे, अपनी जिंदगी के अंदर प्रैक्टिकल रूप के विच लैके नहीं आ रहे। महाराज जी कहते पूछत है वैद, पुछदा पुछदा वैद दे कोल भी चला गया, खाद औखद न संजम सै कैसे मिटे रोग सुख सहज समाइए। भला रोग मिट सकता है जी दवाई ना खाने के कारण? दवाई खाएगा तो ही मिटेगा। पूछत सुहागन है, हुण इस्त्री की गल की, उहदे बाहरली आभूषण करके उहदे शरीर ते देखिया, गहने पाए ने, चूड़ा पाया है, श्रृंगार किया है कि लग रही है कि हाँ सुहागन है, इहदा नया आनंद कारज है। कह लगे पूछत सुहागन है, पर जो कर्म की गल की, कर्म दुहागन के हृदय उपचार हृदय विचार कत सहज बुलाइए। कहला पूछ लिया, वो कहती कि मैं एक सुहागन हाँ, पर जो उहदे कर्मां वल झात मारी, अंदर मैल दुविचारी सी, विचार भरी सी, दुहागन सी, थां थां मूँह मारती सी। ये गल इत्थे भाई गुरदास जी ने की। बाहरले शरीर करके ते लग रहे हैं जी पवित्र, पर अंदर की जीवों मैले बाहरों निर्मल की जो गल करांगे, वही पावन पवित्र पंक्ति। फिर कह लगे गाएं सुने आंखें मिचे पाइए ना परम पद, गाउण दे नाल सुनण दे नाल इदां नहीं भाई परम पद भी पाई जाती, इदां नहीं रब मिलता। रब ते तां मिलेगा गुरु उपदेश कहें जो लो न कमाइए। गुरु के उपदेश नूं अपनी जिंदगी के अंदर कमा, जेकर परम पद भी हासिल करनी। ये है जी चुप है चुप ना होवे, जे लाए रहा लिवतार, चुप रहन दे नाल तू रब नूं नहीं पा सकदा भाई, सगों अपने शरीर नूं कष्ट ही देवेगा। मैं कदों बोला अंदरों उबाला यही निकलेगा। पर जेकर वाकई उस रब नूं खुश करना चाहुंदा है तो हुक्म रजाई चलना, नानक लिखिया।